Hi everybody, this is Lakshya Mittal, and in this video we'll be discussing the puzzle which is the camel and the banana puzzle. So this puzzle has been in my to-do list for a very long time because इसको मैं बहुत अच्छे से बनाना चाहती थी, मैं इसको बस ऐसे ही नहीं बनाना चाहती थी. So I just wanted to make and give it full time, full efforts. So इसी वजह से today is the day when I actually decided कि ये puzzle आनी चाहिए. So already I've uploaded a lot of puzzles and logical puzzles का पूरा एक playlist है that is already done and completed. So I'll be just adding 2-3 puzzles more in that, and then we'll be done with the logical puzzles part 1 series. So basically I've planned to make more of logical puzzles which are not really that necessary for the interviews, because interview related puzzles I've already done in my playlist, but some of the puzzles which might be important in future or which might come in future interviews, so I'll add those as well. But then first of all we'll move on to shape based puzzles, then we'll move on to some other puzzles, that is the arrangement based puzzles and the analytical puzzles, and then finally we'll jump on back to the logical puzzles. बीच में और चीज़ें भी आती रहेंगी, but that is not the point that we are going to discuss here. The thing that we're going to discuss here is that camel and the banana puzzle. तो in this puzzle ये पज़ल मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीदी वो बनाना वाली पज़ल कराओ, एंड यू नो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू स्टार्ट ऑफ विद दिस पज़ल बिकॉज दिस पज़ल वाज आस्क्ड इन माय गोल्डमैन सैक्स इंटरव्यू. तो मेरा इंटर्न का एक्सपीरियंस था, तो इंटर्न के एक्सपीरियंस में लाइक दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम मी. सो when I first saw this question, I was fully blank about what is really happening because I thought कि Goldman का interview दे रही हूँ, and I really didn't know up to that point कि puzzles are so important for interviews, because ये जो सारी puzzles है ना, ये मैंने बनाने का जो plan बनाया that is because of my interview experiences only. मेरे को पहले नहीं पता था that in interviews puzzles are asked, but after giving so many interviews at so many good big firms, I realized that puzzles are very important which no one gives attention to. उसी की वजह से आपका कट जाता है and you're not able to solve it properly. Because think about me also, when I was in my third year back then, after 2 years before, so I literally had no clue कि ये puzzles हैं, these really exist in Geeks for Geeks, and अगर मैं ये कर चुकी होती तो it would have been a lot more easier for me to handle the interview, but मैं नहीं करके गई थी. So that is the thing which I want to change, that puzzles are important, aptitude is important, it's not all about DSA, it's about your aptitude, analytical skills as well. So yeah, this was asked, and I'll tell you about how I approached the question and how I was able to come up with a brief solution of that, not exactly, but yeah, something I came up with. So first of all, I'll tell you the question. What it states is, a person has 3,000 bananas and a camel. A person wants to transport the maximum number of bananas to a destination which is 100 kilometers away. So in short term, in easy simpler terms, I'll explain you. तो एक place है, so this is the source and this is the destination, right? I'll change my color because red is not looking good, so I'll change it to black. So this is the source, and a person is having bananas which is 3,000 in number and a camel. So camel का इन्होंने characteristic दिया है कि camel can only transport 1,000 bananas at one time. So camel can transport only 1,000 bananas at one time का मतलब है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1,000 bananas लेके जा सकता है, and the distance between source and destination is 1,000 kilometers. एंड इसके अंदर ये दिया है कि मतलब जो कैमल है उसका जो कैपेसिटी दैट इज़ ओनली 1,000 बनानाज, बट ऑन द अदर हैंड वी हैव टू कैरी 3,000 बनानाज, क्योंकि बंदे के पास 3,000 बनानाज है और उसे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचाना है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल थिंक कि एक ऐसे फॉरवर्ड ट्रिप करते हैं, एक बैकवर्ड ट्रिप करते हैं. पहले 1,000 बनानाज लेके आएगा, फिर वो खाली आता आएगा, उसके बाद फिर से 1,000 बनानाज लेके जाएगा, फिर खाली आता आएगा, फिर उसके बाद हिल टेक 1,000 बनानाज मोर. तो ये ऐसे 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 ट्रिप्स हो रही हैं इसकी. बट इस क्वेश्चन में एक कैच है. इस क्वेश्चन में कैच ये है बिकॉज ऑब्वियसली इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन लाइक दिस, बिकॉज ये तो कोई 10th क्लास का बच्चा भी कर ही देगा. तो कैमल कैन नॉट कैरी, ये तो दिया है, एंड ईट्स अ बनाना एवरी किलोमीटर इट ट्रैवल्स. तो अब जो कैमल है वो यार बेचारा इंसान, मतलब जानवर ही, तो उसको भूख लगती है, तो बीच में वो जो भी किलोमीटर ट्रैवल करता है ना वो बनाना खा लेता है. तो विच मीन्स दैट इन सिंपलर टर्म्स कि अगर वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाता है विच इज़ 1,000 किलोमीटर, और अगर वो 1,000 बनानाज अपने साथ लेके जाता है, तो अगर हर
किलोमीटर पे वो एक बनाना खाता है तो 1000 किलोमीटर पे 1000 बनानास खा जाएगा। तो 1000 बनानास अगर वो खा गया, तो अगर उसने 1000 बनानास खा लिए तो इट मीन्स वो डेस्टिनेशन पे खाली हाथ पहुँचेगा, एम्प्टी हैंडेड। अब उसको बाकी इस यहाँ पे 2000 बनानास बचे, लेकिन अगर उसको वापस आना है तो उसके पास कोई बनाना नहीं बचा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए ना जाने के लिए। इस पॉइंट से उस पॉइंट पे वो गया तो ही 8000 बनानास एंड नाउ इज़ लेफ्ट विद 0 बनानास। अगर उसको वापस आना है एंड ट्रैवल 1000 किलोमीटर करना है सो दैट ही कैन कम टू दिस पॉइंट विच हैज़ 2000 बनानास लेफ्ट, तो वो नहीं आ पाएगा बिकॉज ये 0 बनानास हियर, तो वो वापस आ ही नहीं पाएगा। इट मीन्स जो कैमल की कैपेसिटी है दैट इज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड, और मे बी वी हैव नॉट फाइंड आउट द ऑप्टिमाइज पाथ। तो अब आप सोच रहे होगे कि यार क्या करना है, एंड व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन आई वाज लाइक व्हाई इज दिस क्वेश्चन इवन मेड, बिकॉज इन द इंटरव्यू you have to solve DSA questions also, you have to solve this question, that question, everything. So you're like कि यार ये question कैसे बना, and you know this thing with me was that this question was fresh with me, so I was able to think on those lines. अगर आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता है तो you'll just do ऐसे नाटक करोगे आप कि यार हाँ ये क्वेश्चन, ये आप डाउट पूछ लोगे, वो डाउट पूछ लोगे कि इज़ दिस नॉट पॉसिबल, सो दैट थिंग इज़ नॉट फ्रेश। बट मेरे इंटरव्यू में क्या था कि दैट वाज फुली फ्रेश, तो जो मेरा थॉट प्रोसेस था ना दैट वाज कम्प्लीटली प्लेन एंड इट वाज जस्ट लेयरिंग, लाइक एक डाउट आया फिर मैंने वो क्लियर किया, फिर दूसरा डाउट आया वो क्लियर किया, मतलब नाटक नहीं था उसके अंदर कोई। तो दैट इज़ द गुड थिंग दैट आई वुड से, बिकॉज इंटरव्यू को वो चीज़ अच्छी लगी दैट आई वाज हैप्पी एंड ओपनिंग अप टू आस्किंग क्वेश्चंस। सो आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई आस्क्ड हिम, मतलब इतना 2 साल हो गए बट या थोड़ी बहुत चीज़ें याद है। आज की ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देन ही टोल्ड मी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, यू जस्ट थिंक एंड बिकॉज आई टोल्ड हिम कि ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू रिकन्फर्म द क्वेश्चन दैट ही टोल्ड मी। मे बी ही टोल्ड मी द रॉन्ग क्वेश्चन, मे बी आई गॉट समथिंग रॉन्ग। सो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि यार आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन विच यू टोल्ड मी एंड दिस थिंग इज कमिंग इन टू माई माइंड, सो इफ़ इट्स राइट देन टेल मी, इफ़ इट्स नॉट देन टेल मी। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि आई एम opening up to like he was very happy कि मैं questions पूछ रही हूँ and I am actually thinking about the possibility of the question being wrong first of all and the question being right but I understood it wrong. तो he was thinking कि यार listening abilities तो हैं बंदी के अंदर, so whatever it was. So अब क्वेश्चन के अंदर हम दोबारा आते हैं, तो अब ये चीज़ तो नहीं हो सकती दैट स्ट्रेट अवे फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन ही टेक्स 1000 बनानाज एंड 1000 बनानाज आर जस्ट कंज्यूम्ड इन वन गो, सो ही वोंट बी एबल टू ब्रिंग कम बैक एंड ब्रिंग द रिमेनिंग 2000 बनानाज. सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड ऑप्टिमाइज इट. अब ऑप्टिमाइज ऑब्वियसली करना है, बट व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? सो वी कैन मेक शॉर्ट ट्रिप्स, वी कैन मेक शॉर्ट ट्रिप्स. अब शॉर्ट ट्रिप्स का मतलब क्या होता है वो देखते हैं. तो अगर ये सोर्स है अपना एंड ये डेस्टिनेशन है, तो इफ़ वी मेक शॉर्ट ट्रिप्स देन मे बी यहाँ तक वो बनाना लेके आएगा, 3000 बनाना लाने की कोशिश करेगा, एंड यहाँ पे वो मतलब हम शॉर्ट ट्रिप्स इसलिए कर रहे हैं सो दैट आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब ये आपका डेस्टिनेशन है एंड दिस पॉइंट तक आप 3000 बनाना ले आए. तो दिस डिस्टेंस इज़ रियली स्मॉल, इज़ लेट्स सपोज x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज़ x विच इज़ स्मॉलर देन 1000. तो आप पूरा का पूरा 3000 बनाना छोटी छोटी ट्रिप्स करके ला सकते हैं, छोटी छोटी एज इन कि इफ़ यू वांट टू यू हैव 3000 बनानाज हेयर. ठीक है, आपको ये पूरे के पूरे 3000 यहाँ पे लेके आने हैं. तो आप क्या करोगे, पहले जाओगे आप 1000 बनानाज लेके, फिर उसके बाद आप वापस आओगे. ठीक है, फिर उसके बाद फिर से जाओगे 1000 बनानाज लेके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर आप वापस आओगे, कुछ बनानास लेके आओगे, विल डिस्कस कितने बनानास लेके आओगे, फिर आप फिर 1000 बनानास, क्योंकि कुछ बनानास वापस लाने मतलब वो आता है तो उसको भूख लगती है ना, तो वो अपने साथ भी ले आता है उतने बनानास. मतलब ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू फिगर आउट कि मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मैं इतने बनानास उठा के लेके आता हूँ. ठीक है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ. तो अब इसने कितनी ट्रिप्स की, 1 2 3 4 5 ट्रिप्स की. 5 ट्रिप्स का मतलब है 5x बनानास कंज्यूम, बिकॉज एट एवरी किलोमीटर ही ट्रैवल्स ही कंज्यूम्स 1 बनाना एंड दिस डिस्टेंस इज़ x किलोमीटर. तो अब हमारा क्या है, पहले क्या था कि पहले 1000 किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर रहा है, उसके सारे बनानास फिनिश हो जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, शॉर्ट ट्रिप्स करने का जो हमें बेनिफिट मिल रहा है दैट इज़ कि आपने एक ट्रिप की. ठीक है, आपने एक ट्रिप की, आपके सारे बनानास कंज्यूम नहीं हुए. तो आपके मान लो लेट्स सपोज आप 1000 बनानास लेके गए, उसमें से आपने 500 बनानास कंज्यूम कर लिए, 500 आप या फिर 500 छोड़ो, 500 में भी प्रॉब्लम आएगी.
या प्रॉब्लम नहीं आ रही, चलो छोड़ो, 1000 बनानाज हैं आपके पास एंड यू हैव अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर है तो वो 500 बनानास खा गया, ठीक है, क्योंकि 500 किलोमीटर तो कितने बचे 500। अब उसको वापस आना है, तो वापस आने के लिए वो 500 बनानाज अपने साथ लेके आ सकता है और वो डिस्टेंस कवर कर सकता है, सो दैट ही कैन टेक द नेक्स्ट 2000 बनानाज। बट इसके अंदर क्या है कि आपके पास 0 बनानाज बचते हैं एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो जितना ला रहा है उतना ही खा रहा है। मतलब जैसे 1500 डिस्टेंस है, 1000 बनानास ला रहा है, 500 बीच में कंज्यूम करें एंड 500 यहाँ पे बचा, फिर उसको लगा कि यार मुझे वापस जाना है, तो वो पूरा का पूरा 500 उठा के वहाँ ले जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए ना, आप कुछ 300 के आसपास देख लो। अगर मान लो आई रैप दिस, सो मान लो कि डिस्टेंस इज़ 300, तो डिस्टेंस 300 है, इट मीन्स उसने 700 बनानास लेफ़्ट ओवर किए। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, 700 में से 300 बनानास छोड़ देगा और बाकी 300 किलोमीटर वो वापस जाने के लिए ले लेगा। तो 400 बनाना तो बच गए ना फिर भी हमारे पास। तो ये ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स हैं जो हमें अपने आंसर्स में सॉल्व करना है। अब नाउ द सेकंड थिंग इज़ ऑप्टिमाइज। ये शॉर्ट ट्रिप्स का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि शॉर्ट ट्रिप्स कर क्यों रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये दो कितने पॉइंट्स बनाने हैं। ऐसे तो हम इनफाइनाइट पॉइंट्स बना देंगे कि यहाँ पे भी रुक गया, यहाँ पे भी रुक गया, ऐसे छोटे छोटे बना देंगे। तो हमें इसमें क्या सोचना है, सेकंड स्टेप दैट वी हैव टू थिंक इज़ कि हमें जो कैमल की कैपेसिटी है बनाना लेके जाने की, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। कैमल्स कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज़ एंड यूटिलाइज़ करना है, कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज़। अब आपने देखा कि जो camel है that carries 1000 bananas at one time, so you have to make the points in the interval of 1000 only। तो अगर हम यहाँ पे 2000 बनानास छोड़ देते हैं, यहाँ पे 1000 बनानास छोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर अच्छे से आएगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी डू, मैं यहाँ पे फिर से बना लेती हूँ। सो इफ़ वी डू यहाँ पे 1500, ठीक है, ये यहाँ पे 3000 बनानास थे, तो मतलब ऐसा डिस्टेंस किया कि उसने इधर ट्रैवल किया, उधर ट्रैवल किया, इधर ट्रैवल किया, उधर ट्रैवल किया, इधर ट्रैवल किया, उधर किया, कि एट द एंड उसके पास 1500 बनानास बचते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके पास बचते हैं 500 बनानास, ठीक है। तो अगर उसके पास 500 बनाना बचते हैं तो 1500 से यहाँ पे पूरे के पूरे 1500 पहुँचाने में कितने ट्रिप्स लगेंगे। पहले आप इधर जाओगे 1000 बनानास लेके, फिर आप वापस आओगे, फिर आप वापस इधर जाओगे 500 बनानास लेके। So what do you think? 500 bananas, is it a right choice for the camel to go? उसकी पूरी कैपेसिटी 1000 बनानास की है, राइट, बट उसको आप 500 बनानास लेके ही भेज रहे हो, तो उसकी जो पूरी कैपेसिटी है वो यूज़ नहीं हुई ना। इट मीन्स अगर मान लो ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर होता, इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ 200 किलोमीटर, तो अगर वो 1000 बनानास लेके जा रहा है, 1000 बनानास लेके जा रहा है, इट मीन्स उसके पास 800 बनाना अभी भी लेफ़्ट है, राइट, अभी भी उसके पास 800 बनाना लेफ़्ट है। फिर वो वापस आता है 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, तो अब उसके पास 600 बनानास लेफ़्ट है, ठीक है, 600 बनाना लेफ़्ट है। अब वो 600 बनाना यहाँ पे बचे हुए हैं एंड अगेन वो 500 बनानास लेके आता है, तो 500 में से 200 गए, बिकॉज 500 बनाना इधर ऑलरेडी 1000 आपने पहुंचा दिए, उधर 1000 में से सिर्फ 600 ही बचे आपके पास, क्योंकि बीच में डिस्टेंस है। तो अब क्या है, 500 बनानाज हैं, 500 में से 200 गए क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, तो 300 ही बचे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास यहाँ 2000 बनानाज थे जो मैंने डिस्टेंस वो किया था, तो 2000 बनानाज को आपको पहुँचाने के लिए कितना लगेगा, फर्स्ट ट्रिप, ये वाली ट्रिप एंड दिस अगेन 1000। तो अगर आपके पास ये है तो आप खुद सोचो कि एक बार तो आपके पास 600 बनानास बचे एंड व्हेन ही रिटर्न्स देन यू हैव 800 बनानास। समझ रहे हो ना कैसे। फर्स्ट ही वेंट हेयर, 200 किलोमीटर है, तो उसके कितने वेस्ट हो गए बनानास, ही वेस्टेड 200 बनानास, तो 800 बनाना बचे। लेकिन अब उसको ये था कि मुझे वापस भी जाना है, अब वापस जाने के लिए उसके पास कितने बनाना बचे, 600 बनानास। अब वो 1000 बनानास और अपने साथ लाएगा, लेकिन 200 बनाना रास्ते में ही खा जाएगा, तो उसके पास बचे 800। तो 800 प्लस 600 कितना हो गया, 1400 बनाना। और यहाँ पे कितना हो रहा था आपका, यहाँ पे आपका 500, यहाँ पे आपका हो रहा था 600 प्लस 300 बनानास, तो आपका हो रहा था 900 बनानास। सो ऑब्वियसली you need to maximize what he takes and that maximum is what he can take. So the maximum capacity of camel is what we need to see here, and वहाँ पे ही हमें यही एक प्रॉब्लम का कैच है कि कितने हमें एंड पॉइंट्स बनाने हैं, कितने स्टॉप पॉइंट्स बनाने हैं, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच द कैमल कैन ट्रैवल एंड कितने हम मल्टीपल्स बना सकते हैं। सो इन दिस केस वी कैन मेक जगह है ना हमारे पास, राइट। सो अभी मैं शुरू से शुरू करती हूँ। दिस इज़ सोर्स,
ये समझ आ गया ना आपको क्या कर रहे हैं हम? अब नाउ विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं एंड दिस इज़ z। तो दिस इज़ फर्स्ट टॉप पॉइंट जहाँ पे 2000 बनाना बचे, मतलब वो लाया तो 3000 था लेकिन खा पी गया तो 2000 बचे, एंड यहाँ पे 1000 बचे। एंड फाइनली हज़ार के मल्टीपल्स ख़त्म हो गए हैं। 1000 को और छोटे में आप डिवाइड नहीं कर सकते। 1000, 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 2, 2000, 1000 इंटू 3, 3000, सब कुछ कंप्लीटेड है। सो 3000 बनाना यहाँ पे थे। अब वो यहाँ पे गया तो उसे कितने ट्रिप्स लगे? 5 ट्रिप्स लगे। इधर गया, फिर वापस आया, फिर ऐसे। तो ये 1000 लेके गया, फिर यहाँ पे 1000 लेके गया, फिर यहाँ पे 1000 लेके गया, एंड 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x बनानास उसने रास्ते में कंज्यूम कर लिए। सिमिलरली 2000 बनानास को यहाँ तक पहुँचाने में कितने ट्रिप्स लगेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3y बनानास कंज्यूम कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए उसको सिर्फ एक ही ट्रिप लगेगा, तो ही कंज्यूम्ड ओनली z नंबर ऑफ बनानास। तो अब हम देखते हैं 3000 बनानास उसके पास इनिशियली थे, एंड व्हेन ही कंज्यूम्स 5x देन ही इज़ लेफ्ट विथ 2000 बनानास एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया डिस्टेंस दैट ही ट्रैवल्स? तो ये हो गया हमारे पास 13, ये 5x, तो दैट कम्स आउट टू बी 200 इक्वल्स टू x। सो ये हमारा हो गया 200। अब हम सिमिलरली ऐसे देखते हैं फॉर y का कितना है? 2000 बनानास थे एंड ही कंज्यूम्स 3y बनानास एंड ही इज़ लेफ्ट विथ 1000 बनानास। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू y। तो ये हमारा हो जाएगा 333.3 समथिंग कुछ हो जाएगा इक्वल्स टू y। डिस्टेंस हमारा फ्रैक्शन में आ सकता है, बट on the other hand y determines the number of bananas he consumed, तो that can't be in fraction, right? तो या तो हम 3334 ले लें या हम 3333 ले लें। ठीक है, तो अब हम करके देख लेते हैं किससे हमें फ़ायदा होगा। तो अब जैसा मैंने बोला कि उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, ही आइदर हैज़ 334 बनानास या 333 बनानास, तो दोनों का सॉल्व करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट विल सॉल्व 334 बनानास का। सो बेसिकली अब हमारा जो 2000 माइनस 3y है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज y हमने 333 इंटू 0.3 नहीं लिया, हमने क्या लिया है? हमने 334 अज्यूम कर लिया राउंड फिगर। तो अब 2000 माइनस 3y करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी समथिंग डिफरेंट। y की जगह 334 हमने पुट किया, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1000 एंड दैट कम्स आउट टू बी 998। तो 334 3 ज़ा कितना होता है? 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 10, 1000 इन 2, तो हमारे 998 बनानास आर लेफ्ट विद हिम एट दिस पॉइंट। ठीक है, हमने 1000 एज्यूम किया था, लेकिन अब हमारे पास 998 बनानास आर लेफ्ट एट दिस पॉइंट। अब उसके डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस दैट ही नीड्स टू ट्रैवल इज़ 1000 माइनस x माइनस y। ठीक है, x डिस्टेंस, y डिस्टेंस, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द z डिस्टेंस। तो 1000 माइनस 200 माइनस 334 which comes out to be 1000 minus 534 and 460, so we have 466. So 466 is the distance that he needs to travel. अब बनानास कितने पास हैं उसके पास? 998। तो 998 में से 466 माइनस करेंगे तो विल बी गेटिंग 532 बनानास। तो ये 532 बनानास आ गया। अगर हम 334 लेते हैं, 333 लेते हैं बनानास, तो विल बी गेटिंग 2000 माइनस 3 इंटू 333 विच इज़ 1001। तो हमारे पास इस पॉइंट पे उसके पास 100 बनानास होंगे। वी अज्यूम्ड इट टू बी 1000 बट नाउ इट्स 1001। तो यहाँ तक उसको जाने के लिए ये डेस्टिनेशन है अपनी, तो अब डिस्टेंस कितना होगा? 1000 माइनस x माइनस y, 1000 माइनस 200 माइनस 333 अज्यूम किया है हमने इन दिस सिनारियो, तो इट विल बी 533 एंड दिस डिस्टेंस विल बी 467। ठीक है, ये डिस्टेंस 467 होगा। और बनानास कितने लेके जा सकता है वो? 1000 एट द मैक्स। एक बनाना उसको छोड़ना पड़ेगा, उसका वेस्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ 467। तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 533 बनानास। तो ये था हमारा 532 एंड दिस इज़ 533। सो क्लियरली दिस इज़ द आंसर। तो हमें अज्यूम करना है कि 333 हम राउंड फिगर ले लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो अब आप सोचो कि एक बनाना रह गया, एक बनाने का क्या करें? तो आप क्या
एक बनाना लेने के लिए उसको वापस इस डिस्टेंस पे भेजोगे विच इज़ 467, क्योंकि उसको 467 बनानास वेस्ट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट वन बनाना अप टू डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन तक लाने के लिए भी उसको बनानास चाहिए। तो यही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बनानाज है विच वी कैन ब्रिंग टू आर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन विच वी वॉन्ट। तो दैट इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व। एंड इन सम सिनारियोज आप ये भी अज्यूम कर सकते हो, आप इंटरव्यूअर से पूछो। अब मैंने इंटरव्यूअर से पूछा कि अब जैसे ड्रॉप पॉइंट्स का जो पॉइंट था वो ऑब्वियसली आपके मन में भी आ जाएगा कि यार छोटे छोटे ट्रिप्स मारोगे तो हो जाएगा, बट उस टाइम पे शायद ना भी आए, लेकिन मेरे मन में आ गया था, तो आई वाज ऑन प्लस पॉइंट फॉर दैट। मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया था, सॉल्व नहीं हुआ था मुझसे, बट या क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं ऑप्टिमाइज़ कर पाई थी दैट वी कैन हैव 2 शॉर्ट ट्रिप्स। आई कैन फिगर आउट कि शॉर्ट ट्रिप्स होने चाहिए, बट आई कुडंट फिगर आउट हाउ मेनी शॉर्ट ट्रिप्स आर पॉसिबल। तो मैं वो मल्टीपल ऑफ 1000 वाला चीज़ नहीं फिगर आउट कर पाई थी, बट नेवर माइंड। तो अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो कैमल है, he goes up to this point, some point, then while he is returning, does he need more bananas? Does he bring bananas with him? Because he is not intelligent, he is a animal. So how does he know that he has to take these many bananas with him while he is returning to the source spot? तो he told me कि हाँ ठीक है, you have to consider that he is intelligent enough to take the bananas again. तो if in case he says, the interviewer says that no, on the return trip he doesn't need bananas because उसके पास कोई choice नहीं है, and he is already equipped with fats and all, cholesterol, so that he can bring so that he can come empty handed without any bananas. तो अगर हम assume करते हैं कि ये 2000 bananas यहाँ पे हैं, यहाँ पे 1000 bananas हैं, so he does the first trip, takes 1000 bananas, then he comes back, then he goes again, takes 1000 bananas, and then he comes back, then he goes again, takes 1000 bananas. So we have 5 trips in total, but on it's being mentioned कि on the return trip he doesn't eat bananas. तो क्या होगा हमारा 5x 3x, sorry, because 3x में ही वो consume हो रहा है, and then here also he comes back, then only two trips were there. So in all 3000 minus 3x equals to, we have 2000. So 1000 divided by 3, which gives us x. So 333 approximately, we assume it 333 क्योंकि मैंने reason बताया था। 334 assume करोगे तो obviously it will be more. तो मतलब less bananas, more distance, because if you have more distance then you'll have less bananas left. So basically what we assumed, more distance मतलब 2000 में से जब आप 3y माइनस करोगे तो you'll be left with less number of bananas, and if you are left with less number of bananas then you don't utilize your full capacity to go somewhere. तो 3000 माइनस अगर हम 3 we do, if let's do it, so 3000 में से अगर हम 3 3 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 9 3 ज़ा 9 10,000 and 2 माइनस करेंगे तो will be left over with 9 will be left over with what is this 1998 bananas. But अगर हम 333 माइनस करते तो will be left over with more bananas. So if you minus 333 so that is 999 to 0 and this is 2001 bananas will be left over with. So that's the reason why we chose 333 and not 334. So 333 x की distance हो गया. अब now coming on to y distance, तो that y distance will be 2000 minus 2y equals to 1000. तो 1000 by 2 equals to y and we have 500. तो 500 हमारा y हो गया. So in all we have 1000, z कैसे निकलेगा, 1000 minus 333 minus 500. So ये हमारा निकलेगा ऐसे. तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 minus 833 which is 2 just 10 7 6 and then we have 1. तो 167 is the distance z. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 167 distance बचा and we have 1000 bananas here. यहाँ तक 1000 बनाना है, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना लगेगा, 1000 minus 167 which is 3 and 9 833 bananas हम max to max पहुँचा सकते हैं. So this is also a scenario in which he doesn't eat bananas on the return trip. So these are the questions which you need to ask the interviewer and he'll be really happy if you brainstorm on these things कि आप सोच रहे हो actually कि whether he eats or not, how he eats and all those questions. So
Yeah, I was successful in this interview. So it was a plus point for me. Of course, he asked me a lot of other questions related to trees and all. So उन्होंने मुझसे ये puzzle पूछी. Then he asked me about basic concepts related to C++, Python. What's the difference between both of them? OOPS concept. And then he asked me about a tree related, a node related question, to be very precise, in the essay. And then he asked one more puzzle which I really don't remember. It was easy only, but yeah, I don't remember it for now. But yeah, I was able to clear the first interview. Then I went to the second interview. Second interview का puzzle I've already uploaded, so do check it out. कहीं तो होगा analytical puzzles में या logical puzzles में, so I mentioned it over there as well. So stay tuned for the next part of it. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.